Hello friends, in today's video lecture we are going to cover the percentage calculations. Percentage calculations are based majorly on the three formulas. What are they we will see, but before that we will understand what is percentage. What is mean by percentage? So percentage is rate per 100. It can be gram per 100, it can be ml per 100. So what is that we will see now. Gram per 100, so rate per 100 is expressed in two ways, as in the forms of ratio also, or it is in forms of decimal fraction also. So it is, ratio is, for example, if you are saying that it's a 5% solution, it means what? 5 gram solute dissolved in 100 ml solution. So 5 divided by 100 is fraction, which is ratio, and its decimal fraction becomes 5 divided by 100. If you will divide it, it will give you 0.25 as decimal fraction. So it can be expressed in terms of decimal fraction as well as in terms of ratio or in terms of directly percentage. So here if you will take for 10%, so the ratio will become 10 divided by 100. That means 10 gram of solute in 100 ml of solution or 100 gram of solution. Vice versa. So it depends on weight by weight or weight by volume what it is. And decimal fraction will say that the division, that is 0 will get cancelled and it is 0.1. So it is decimal fraction, this is ratio, and this is percentage. So the concentrations which are there, the percent concentrations, these are generally expressed in various ways. So what are these ways we will see now. First, which is extensively used, is weight by volume solutions. So weight by volume means what? Some weight resolved in some volume, that means ml and gram. So in general terms, if you are supposed to say the 1% solution means what? 1 gram solute dissolved in 100 ml of solution is nothing but 1% solution. So there are two systems, one is metric and one is imperial. So in metric system, when you say that 1% solution, so in metric system 1 gram solute is dissolved in 100 ml solution. And if you are considering the imperial system, so it is 4.35 grain in 1 fluid ounce solution, or 35 grains in 8 fluid ounce solution, or 1 grain in 1110 minim solution. So this is volume, this is volume, this is volume, this is weight. So it is weight by volume, weight by volume, weight by volume. This is for imperial. In 1 fluid ounce, 8 fluid ounce and 1110 minim solution. So the weights are also different for different volumes. In metric it is 1 gram solute per 100 ml of solution. When you call it as volume by weight, so it means what? 1 ml solute dissolved in 100 gram solution. So for that, imperial system says 4.8 minim solute in 1 OZ solution and 1 fluid OZ solute in 100 OZ solution. So this we are not supposed to focus much. This is extensively used. And then weight by weight. So it is solute by solute. That means when you are calling 1% weight by weight, so it is 1 gram solute dissolved in 100 gram solution. So in imperial system it is 1 OZ solute in 100 fluid OZ solution. It is 1 grain solute in 100 grain solution. Grain, grain, fluid OZ, and grain to 1 fluid OZ. So it is 4.35 grain to 1 fluid ounce solution. So other are volume by volume and volume by weight, but extensively used is weight by volume or weight by weight. So what volume by volume says? It is normally volume by volume. So 1 ml solute in 100 ml of solution. In imperial system it will become 1 fluid ounce solute in 100 fluid ounce solution, 1 to 100 fluid ounce. Here 1 minim solution, 1 minim solution to 100 fluid ounce solution. So 1 minim solute to 100 fluid ounce solution. So we will see the concept of percentage solution. So to go towards the
percentage solution concept and the variables of percentage solution. This is the simplest diagram by which you can understand the solute solvent concept. So this diagram, as you can see, simply there is one beaker, there is solution, and these are the solute particles. So when you call, so this is represented by solute, the stars, the dash 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 is solvent. So this solute and solvent, इसका concentration पे depend करता है percent strength. That means when you are calling 1% solution, so what it means, 1 gram solute in 100 ml of solution, so it will give you 1% solution. So now here the three variables are, first अभी volume है, फिर weight है solute का, and percentage है उसका पूरा सोल्यूशन का परसेंटेज, मतलब सल्यूट एंड वॉल्यूम मिलके क्या परसेंट का सोल्यूशन बनाते हैं. तो अभी सल्यूट का अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन ईदर ग्राम और ग्रेन. वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन ईदर मिनिम, फ्लूइड आउंस और ml. मिनिम, फ्लूइड आउंस और ml. देन परसेंटेज is expressed in this way, percent, 5%, 10%, 25%, etc. So if the solute increases, the solution will become more concentrated. So since, as you can see in the diagram, earlier there were these many solute molecules, but now the solute is increased, so the solution will become concentrated if the volume is same. So what I have written here, if the volume is kept constant, volume is same, but solute is increased. So solute, if it is increased with the same volume, that means keeping volume constant, then it will become concentrated and percentage strength will ultimately increase. And if the solvent is increased, keeping solute constant, that means these solute molecules are not there. Earlier there were these many solute molecules, so these are there, and only the volume is increased. As you can see, the color has changed. So ultimately, as you all know कि ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डाइल्यूशन हो जाएगा. सो डाइल्यूशन अगर हो गया तो परसेंट स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, तुम लोगों ने यहाँ पे अभी 1 लीटर वाटर में थोड़ा सा नमक डिजोल्व किया, सॉल्ट, NaCl, राइट. सो NaCl इतने वाटर में डिजोल्व करने के बाद, से फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्यूम है 100 ml और 2 ग्राम NaCl तुम लोगों ने डिजोल्व किया, तो इसका स्ट्रेंथ बन जाएगा 2%. अगर ज़्यादा NaCl और तुम लोगों ने एडिशनली ऐड किया इन द सेम वाटर, सो सेम वाटर में एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl, मतलब दिस कंडीशन सल्यूट हैज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो ज़्यादा जितना सल्यूट होगा उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब उतना उसका परसेंट स्ट्रेंथ बढ़ेगा. सो सल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट स्ट्रेंथ. एंड अगर समझो NaCl 2 ग्राम ही है, सिर्फ 100 ml का तुम लोगों ने 200 ml कर दिया, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ज़्यादा सॉल्वेंट डालने से डाइल्यूशन हो जाएगा. सो अगर डाइल्यूशन हुआ, सल्यूट उतना ही है, उतने ही सल्यूट में अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाया वाटर का तो डाइल्यूशन होगा, और डाइल्यूशन के वजह से जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का, जो 2% है, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा. सो परसेंट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा. सो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट स्ट्रेंथ and solute is directly proportional to percent strength. Now in this condition, say for example, if volume increases and solute also increases but both are in proportion, मतलब solute भी increase किया और volume भी increase किया. say for example अभी ये 2 ग्राम पर 100 ml है, अभी तुम लोगों ने और 100 ml वाटर डाला और 2 ग्राम NaCl डाला, तो प्रोपोर्शनेटली इसको इंक्रीज किया है. तो अगर दोनों भी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं तो परसेंट स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहता है. तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट, मतलब एडिशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सल्यूट विल कीप द स्ट्रेंथ कांस्टेंट. सो अभी समझ गए तुम लोगों को वेरिएबल्स क्या क्या है, वॉल्यूम, सल्यूट एंड परसेंट. वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो परसेंट स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा,
सल्यूट अगर इंक्रीज किया तो परसेंट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. एंड अर्लियर ओनली वी हैव सीन दीज आर द मेजर्स ऑफ सल्यूट एंड वॉल्यूम. एंड परसेंटेज में परसेंट भी है, फ्रैक्शन भी है एंड डेसिमल फ्रैक्शन भी है, मतलब रेशो भी है एंड डेसिमल फ्रैक्शन भी है. सो दिस इज द रिलेशन और दीज आर द वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स क्या थे? वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो परसेंट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, सल्यूट को अगर इंक्रीज किया तो परसेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम और सल्यूट को दोनों प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज किया तो परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा. सो दीज आर द वेरिएबल्स. नाउ for percentage calculation we have these many formulas. Now in earlier first page only we have seen that 4.35 grains per fluid OZ मतलब 435 per 100 था. So 4.35 per 100 था, तो अभी 100 ग्रेन 1110 मिनिम में. अभी इसको मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्टिवली दिखाती हूँ. देखो ये फर्स्ट पेज पे है. ओके अभी इसका 1110 मिनिम है तो इसमें 1 ग्रेन है, राइट. तो 1110 मिनिम 100 ग्रेन, 2 डेसिमल बढ़ा दिया है. अभी यहाँ पे भी 4.35 ग्रेन है 1 फ्लूइड आउंस में, तो यहाँ पे भी क्या किया है? 435 किया है. मतलब ये जो 4.35 था 2 डेसिमल आगे लिया तो ये 435 बन गया, और जो ये 1 ग्रेन 1110 मिनिम में था इसको 2 डेसिमल आगे लिया, मतलब तो ये 100 हो गया. सो फॉर्मूला क्या है? पहला, अगर ग्रेन्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है पर अगर वॉल्यूम फ्लूइड आउंस में दिया है और कोई केसेस में वॉल्यूम मिनिम्स में दिया है तो ये 2 अलग अलग फॉर्मूलाज है. इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ अमाउंट ऑफ सल्यूट हैज बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंपीरियल सिस्टम का मेजर्स, दैट इज फ्लूइड आउंस एंड मिनिम्स. सो अभी 435 ग्रेन्स पर फ्लूइड आउंस इनटू परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन. मतलब क्या? अभी समझो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में बोला है 5%, तो इसको अगर तुम लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.05, राइट. अभी इसको ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ये इसका परसेंटेज 5% है, तो परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना पड़ता है फॉर कॉम्पिटेशनल पर्पस. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लूइड आउंस मतलब कितना वॉल्यूम दिया है, सेम यहाँ पे 100 आएगा मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज सेम एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल एंड नंबर ऑफ मिनिम सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्रेन्स ऑफ सल्यूट. सो अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को वॉल्यूम दिया है, ग्रेन्स ऑफ सल्यूट दिया है, तो परसेंटेज तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर परसेंटेज दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो ग्रेन्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है. तो अभी कोई भी 2 पैरामीटर्स इफ दे आर गिवन देन यू कैन इजीली कंप्यूट द थर्ड वन. अभी थर्ड फॉर्मूला क्या है हम लोग देखेंगे. अभी यहाँ पे अगर ग्राम्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है तो फैक्टर क्या था? 1 ग्राम पर 100 ml. सो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो दूसरा क्या है? परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल. सो 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी यहाँ पे फ्लूइड आउंस था, यहाँ पे मिनिम था, यहाँ पे ml है. ग्रेन में क्वांटिटी कैलकुलेट करना था क्योंकि ये इंपीरियल सिस्टम है, ये मेट्रिक है क्योंकि ग्राम्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करेंगे ml ऑफ सॉल्यूशन से. सो ml ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम हो गया, ये सल्यूट हो गया, राइट. तो अगर सेम वे अगर कोई भी 2 पैरामीटर्स गिवन है तो थर्ड यू कैन कैलकुलेट, कोई भी 2 गिवन है तो थर्ड यू कैन कैलकुलेट, राइट. सो वी विल सी some examples. Now coming towards the example, first example is, see now read the question properly. अभी क्या पूछा है? How many grains of NaCl is required? तो अभी grains of solute पूछा है. अभी आगे क्या है? To prepare 8 fluid ounce, मतलब वॉल्यूम क्या दिया है? 8 fluid ounce. परसेंटेज क्या है? 5%. तो अभी कॉम्पिटिशनल पर्पस को जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग
उसको कन्वर्ट करके लेने वाले हैं किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। सो अभी 5% का डेसिमल फ्रैक्शन हो गया 5 डिवाइड बाय 100 0.05। सिंपली अगर इसको परसेंट में इसको ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। सो दिस इज कन्वर्टेड टू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी फॉर्मूला क्या है, ग्रेन्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, 435 इंटू परसेंटेज एज डेसिमल इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू सल्यूट। तो अभी इसमें सल्यूट का क्वांटिटी निकालना है, वॉल्यूम दिया है इन फ्लूइड आउंस जो कि 8 है, परसेंटेज हम लोगों ने निकाला जो कि 0.05 है, इंटू 435 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। सो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 174 ग्रेन्स ऑफ सल्यूट। So 174 grains of NaCl is required to prepare 8 fluid ounce of 5% solution. इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 5% मतलब क्या, 5 ग्राम 100 ml में। तो अभी 8 fluid ounce, 1 fluid ounce is 30 ml, so 8 fluid ounce is 240 ml, तो 240 ml में कितना, so 240 into 5 divided by 100। Coming towards the next questions, now you have some assignment questions for you. So first question is, you can take the screenshot of this, see, or you can simply solve it and you can cross check the answers. So what is the first question now? First question is, calculate the grains of NaCl required to prepare 5 fluid ounce of 10% solution। तो अभी यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ दिया है, वॉल्यूम दिया है, सल्यूट कैलकुलेट करना है, सेम पहला वाला फॉर्मूला निकालना है, गिवन क्वांटिटीज लिख लेना है एंड जो भी आंसर रहेगा वो होगा 217.5 ग्रेन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 1 ड्रैकम ऑफ मेडिकामेंट इन 3 फ्लूइड आउंस सॉल्यूशन। अभी 1 ड्रैकम तो 60 ग्रेन्स, तो अभी 60 ग्रेन्स क्या है, सल्यूट है, 3 फ्लूइड आउंस क्या है, वॉल्यूम है। तुम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज। सो परसेंटेज ब्लैंक रहेगा, उसका आंसर तुम लोगों को फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा 4.59%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.6%। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ 10% सोल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 1 ड्रैकम, 53 ग्रेन। तो अभी 1 ड्रैकम इज 60 ग्रेन, सो 60 प्लस 53 टोटल मिलके हो जाएगा 113 ग्रेन। सो सल्यूट को इसको ऐड करना है, दिस विल गिव यू द सल्यूट। परसेंटेज दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड उसका अभी क्या निकालना है तुम लोगों को, वॉल्यूम, क्योंकि परसेंटेज दिया है मतलब डेसिमल में एंड सल्यूट दिया है। सो उसका आंसर होगा 2.6 फ्लूइड आउंस। नाउ coming towards the next sums, in next question as you can see, how many grams of dextrose are required. Now you are supposed to calculate it in grams and to prepare 3000 ml quantity, volume given is in ml and percentage is 4%। so अभी percentage दिया है, वॉल्यूम दिया है, सल्यूट कैलकुलेट करना है, बट अभी ये मेट्रिक में है, इंपेरियल में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मेट्रिक वाला है। सो अभी 4% को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 4 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.04। सल्यूट यू आर सपोज टू कैलकुलेट, सो 0.04 फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सल्यूट। सो 0.04 इंटू 3000 इज इक्वल टू सल्यूट, ये निकालना है। सो 0.04 इंटू 3000 इज 120 ग्राम। So solute is 120 grams. So 120 grams of dextrose is required to prepare 3000 ml of 4% solution. Now next example we will see. So next example में same एक example लेंगे हम लोग। So अभी इसमें क्या दिया है, परसेंट स्ट्रेंथ पूछा है, what is the percent strength। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, कैलकुलेट, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सल्यूट दिया है 450 mg, ग्राम में नहीं है, ऑफ ड्रग इन ml 90 ml सोल्यूशन। तो ये वॉल्यूम दिया है,
सल्यूट दिया है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मेट्रिक सिस्टम है तो थर्ड वाला फॉर्मूला परसेंटेज डेसिमल इंटू नंबर ऑफ ml ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सल्यूट। सो परसेंटेज डेसिमल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ml ऑफ सोल्यूशन इज 90 एंड ग्राम्स ऑफ सोल्यूट बोला है तो 450 mg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे विच इज 0.450 ग्राम सिंस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। सो 0.450, number of ml solution 90, solute is 0.450. So percentage decimal 0.450 divided by 90 will give you percentage as decimal which is 0.005. So डेसिमल है तो अभी उसको हम लोगों को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई विथ 100 क्योंकि जब हम लोग परसेंट 0.005 इंटू 100 विल गिव यू 0.5, दो डेसिमल पीछे जाएगा। अभी यहाँ पे जब तुम लोग इसको डेसिमल फ्रैक्शन में करते हो 0.5% को, तो तुम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हो। सो ये दो डेसिमल आगे मतलब 0.005। सो दिस वे वी कैलकुलेट द डेसिमल एंड परसेंटेज। परसेंटेज है, परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाइड है एंड डेसिमल में करना है तो 100 से डिवाइड है। सो द परसेंटेज इज 0.5%. So now we will see some more questions which I will give you for assignment. So you will have to calculate it and the answers are also given. So you can refer. You can first, if you want, you can take the screenshots. If you don't want to solve or you are not able to solve that during the video. So the questions, I will read it for you. The first question is, how many ml of 5% solution can be made from 7.5 gram of drug? तो यहाँ पे अभी solute is given, percentage is given, वॉल्यूम निकालना है तो परसेंट को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। सो ये आ गया 0.05, सोल्यूट है 7.5 ग्राम। सो अभी फॉर्मूला होगा थर्ड, दैट इज परसेंटेज एज डेसिमल इनटू नंबर ऑफ ml इन इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। तो डेसिमल फ्रैक्शन है 0.05, नंबर ऑफ ml कितना ml है हम लोगों को निकालना है एंड ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है 7.5। सो नंबर ऑफ ml इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय 0.05। अभी आंसर इज 150 ml. So next question is, what is the percent strength of a solution made by dissolving 0.6 gram of drug in 0.5 लीटर? अभी ये लीटर में है, इसको हम लोगों को ml में करना है, 0.5 लीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो 0.5 मतलब हाफ लीटर विच इज इक्वल टू 500 ml। सोल्यूट दिया है 0.6। सो सेम वे थर्ड फॉर्मूला परसेंटेज डेसिमल इंटू नंबर ऑफ ml इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम दिया है, सोल्यूट दिया है, तुम लोगों को कैलकुलेट करना है परसेंटेज। सो वॉल्यूम grams of solute will be divided by volume. That means 0.6 divided by 500. So it will give you 0.12%. Now, how many grams of NaCl is required to prepare 1000 ml of 2%? तो अब ये परसेंट स्ट्रेंथ दिया है, वॉल्यूम दिया है, सोल्यूट निकालना है, ml में है, 2% is 2 divided by 100, डेसिमल में कन्वर्ट किया which is 0.02. The answer for this question is 20 gram. Now, this is a combination sum of percent strength as well as dilution. So कैसा है ये सम हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रेन्स रिक्वायर्ड। अभी इसमें सोल्यूट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया है 8 फ्लूइड आउंस, परसेंटेज दिया है 10%। अभी ये पहला सम है, इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग गिवन डाटा लिख लेंगे। वॉल्यूम 8 OZ, 10% का डेसिमल में कन्वर्ट किया, 10 डिवाइड बाय 100 इज 0.1। सोल्यूट निकालना है। सो पहला फॉर्मूला है, अभी ये ग्रेन्स में पूछा है
फ्लूइड आउंस में दिया है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला 435 इंटू परसेंटेज डेसिमल इंटू नंबर ऑफ ml या फिर नंबर ऑफ फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू सल्यूट. सो 435 इंटू 0.1 इंटू 8 विल गिव यू 348 ग्रेन्स ऑफ सल्यूट. अभी आगे क्वेश्चन क्या है, लेबल विद द डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ पिंट ऑफ 1 in 400 सोल्यूशन. अभी डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाना है. 20 फ्लूइड आउंस, 1 पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड आउंस, मतलब 20 फ्लूइड आउंस बनाना है वॉल्यूम. 1 in 400 मतलब उसका परसेंटेज निकालना है. सो 1 डिवाइड बाय 400 इंटू 100. सो 100 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 0.25 परसेंटेज. तो ये परसेंटेज दिया है, वॉल्यूम दिया है. तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड का निकालना है. तो सेम फॉर्मूला था N1V1 इज इक्वल टू N2V2. इंस्टेड ऑफ N1 इट इज परसेंटेज. तो परसेंटेज ये वाला फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, R ऊपर था, U नीचे था, परसेंटेज रिक्वायर्ड इंटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंटेज यूज्ड. सो परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 0.25, परसेंटेज यूज्ड इज 10%. 10% से बनाना है. सो परसेंटेज यूज्ड इज 10%. अभी वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 20 फ्लूइड आउंस. सो परसेंटेज यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 0.25 इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड, 20 इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड, 10 is the percentage used. So this will give you 0.5 OZ. So volume of strong solution required is 0.5 OZ. अभी 1 OZ is equal to 30 ml. So half है तो 15 होगा, 15 है 1 tablespoonful. So अभी 1 tablespoonful when you will dilute to 1 pint, it will give you 1 in 400 solution. So this was the combination example, combination of percentage calculation as well as dilution. So same way here there are many questions, again there are more questions on the combination sums. So calculate the number of grains required to make 8 OZ of 4%. वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज दिया है, सल्यूट निकालना है. सो ये हो गया परसेंटेज कैलकुलेशन. एंड लेबल विद डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग a quart of 1 in 2000 solution. So a quart is equal to 2 pint. 2 pint is equal to 40 fluid ounce. So it is 40 fluid ounce. 1 in 2000 is 1 divided by 2000. Same this way we will calculate, or as in case earlier case we have calculated 1 in 2000 into 100. So whatever the percentage you will get, you will use the formula N1V1 is equal to N2V2. Required, used, percentage required into volume required divided by percentage used will give you volume used. Same here in second question. You are supposed to put your answers in the comment section. Same second question, calculate the number of grains required to make 16 OZ of 20%. वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज दिया है, सल्यूट निकालना है. And label with the direction for preparing 2 gallons of 1 in 16,000. So 1 divided by 1600 into 100. This will give you percentage. 2 gallons is the volume. 1 gallon is equal to 160 fluid ounce. So 2 gallon is equal to 320 fluid ounce. Now third question is calculate the number of grains required to make 12 OZ of 20% solution. ये है वॉल्यूम, ये है परसेंटेज. अभी यहाँ पे तुम लोगों को सल्यूट निकालना है. एंड लेबल विद द डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग हाफ गैलन. सो हाफ गैलन क्या होगा, 1 गैलन है 160 फ्लूइड आउंस, सो हाफ गैलन होगा 80 फ्लूइड आउंस. एंड स्ट्रेंथ है 1 in 400. सो 1 in 400 into 100. So this will give you 1/4, which is 0.25. So you are supposed to put your answers in the comment section. With this we finish with the percentage calculation along with the combination of percentage calculation and dilution. So please revise whatever the calculations we have covered, because these are very very useful from the exam point of view. Not only theory, it is also equally important from the GPAT NIPER exams point of view. So please do revise it, do practice the calculation. Even if you have some questions, you can put it in the comment section. We will try to solve and we will
try to give you the answers definitely, and please try the assignment questions which I have given and put your answers in the comment section. Thank you.